हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द जे थॉमसन एंड देन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी आर सीइंग द Rutherford's scattering experiment also and the observations he did as well as the conclusions he made. Okay, तो आपको भी मालूम हो गया कि किस तरीके से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। ओके, नाउ रुदरफोर्ड इन 1920 it was Rutherford in 1920 also proposed that there is one more particle which is having the same mass with the proton, but this particle, it was nothing but given the name as neutron. Now neutron concept, it was just as an hypothetical concept. म्हणजे विचार करा, न्यूट्रॉनचं एक्झिस्टन्स जे काय होतं हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी। न्यूट्रॉन का जो भी था एग्जिस्टेंस, उसका चार्ज, उसका मास, इसके बारे में लोगों ने तो मान लिया था इस बात को कि न्यूट्रॉन इज एग्जिस्ट, बट इट्स कंसेप्ट वाज जस्ट हाइपोथेटिकल। ओके, देन to discover this neutron, James Chadwick, क्या नाम है उनका? James Chadwick, he done certain experiments on the nuclei, I mean on the atoms like boron and beryllium. You know that boron is having atomic number 5 and mass number as 11. Beryllium is having mass number 9 and atomic number 4. On these nucleus, I mean element, he bombarded. In the last lecture I told you the meaning of the word bombarded. Means we have to strike that particular particle on the एलिमेंट्स। तो यहां पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। ये है अल्फा पार्टिकल, इस तरीके से। एंड देन ही डिस्कवर्ड द न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल which is having the mass almost equal to the mass of proton. But these particles, they were hypothetical in case of Rutherford because they were not showing the deflection. So they were not showing deflection in magnetic and electric field. तो मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी तरह का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें वो न्यूट्रॉन पार्टिकल जो थे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते थे। That's why James Chadwick in 1932 made the experiment. He bombarded alpha particle. In the previous lecture I told you alpha particles are nothing but alpha particles, they are nothing but the helium nucleus जिनका मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। तो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करने के बाद बोरॉन पे या फिर बेरिलियम पे यहाँ पे फॉर्म हुए न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड दे वेर नथिंग बट द न्यूट्रॉन्स। नाउ इफ यू सी हियर 11 प्लस 4 कितना गया 15, इसमें से हमने एक निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे 14। 5 प्लस 2 इज 7। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसका होता है, इट्स ऑफ नाइट्रोजन। Now in the case below 9 plus 4 13, इसमें से एक गया तो बचेंगे 12।
4 + 2 8 6, तो यहां पे आएगा 6। आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? इट्स नथिंग बट कार्बन। सो नाउ यू कैन सी these kind of reactions were made by the James Chadwick in the year 1932, and now you can see here the new particle here is nothing but the neutron. Yes, this new particle is nothing but the known as neutron, and as I told you again, neutron is having the same mass as that of the protons. Okay, but you know that protons, they are nothing but having positive charge, electrons, they are having negative charge, and neutrons, they were having no charges. So in this way discovery of the neutron was occurred. Now he also performed some experiments. अभी इसे जो मालूम चला, मतलब इनको जो मालूम चला जेम्स चैडविक को, ये इसके लिए इन्होंने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे बुक में दिया है, यहाँ पे ये है पोलोनियम का सोर्स। पोलोनियम इज वन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो कि some of the substances, I mean some of the elements, they are having atomic number more than 82 and they have the property to emit the alpha, beta and gamma kind of radiations. So ऐसा ही होता है पोलोनियम। उसने यहाँ पे इसका सोर्स यूज किया और फिर उस पोलोनियम सोर्स में से जो भी अल्फा पार्टिकल थे इनको बम्बार्ड किया गया बेरिलियम के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे दिया है नीचे के रिएक्शंस में। नाउ बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करने के बाद यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुए? न्यूट्रॉन्स, एंड देन दिस न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स विल पास फ्रॉम द पैराफिन। पैराफिन इज अ काइंड ऑफ अ सब्सटेंस, नो दैट। इसमें से पास करने के बाद यहाँ पे क्या मिले? There is a formation of protons, and now the mass of the proton, he discovered that the same with the mass of the neutrons. Okay, so in this way discovery of the neutron it took place. Okay, तो अभी हमें देखा है कि किस तरीके से प्रोटॉन्स, यस, पहले था इलेक्ट्रॉन का हुआ डिस्कवरी, देन बाद में हुआ प्रोटॉन्स का डिस्कवरी, और फिर बाद में हुआ न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी। ठीक है, सो एज वी नो नाउ हियर इलेक्ट्रॉन्स दे आर हैविंग नथिंग बट द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। यस, आई टोल्ड यू। तो यहां पे इनके लिए अगर हम कोई सिंबल यूज करते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज करते हैं नोटेशंस लाइक -1 and 0 here. For protons we have to use the symbol like P11 or H11, क्योंकि हमने देखा था protons they are nothing but the stream of simple hydrogen nucleus. It is present almost in every nucleus of an atom. Then neutrons की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा N1 and 0. So this is nothing but the symbol for the neutron. Okay, तो अभी हमें मालूम चला है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? फिर जे थॉमसन। सो हियर डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट वाज डन बाय द जे थॉमसन। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, यस, Rutherford, as well as I will say here some contribution here of Goldstein, and neutrons were discovered by the scientist James Chadwick. Okay, और इसके बाद I told you the protons and neutrons they are having the same mass, but electrons they were 1837 times lighter than. So here 1 divided by 1837 times lighter than protons. Okay, so protons and neutrons they are having almost the same kind of the mass, but the mass of the electron were equal to this much. Note down this one, I will tell you what to do next.
So these masses were equal. Now, this is the table given over here, and these are nothing but the properties of the subatomic particles. Subatomic particles का मतलब जानते हैं ना आप लोग? Protons, electrons as well as neutrons. Now, they have seen the discovery of all these kind of particles, protons, electrons and neutrons. At the same time, nucleus was discovered by the scientist Rutherford. तो इसके बाद अभी जरूरी है हमें जानना इनके बारे में, I mean regarding their symbols. तो हम अभी बात करेंगे. So the symbol for electron is nothing but E, and for proton it is P, and for neutron it is N. But electron can be also having a symbol in the reaction, especially -1 and 0 is the symbol for electron, as I told you. प्रोटॉन्स के लिए हम यहाँ पे 1 या फिर H11 इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर न्यूट्रॉन यू नो दैट N10 इस तरीके से रिएक्शन में हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे. जैसे कि हमने देखा कुछ देर पहले हाउ जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. उसके लिए जो रिएक्शन मैंने लिखा था बोर्ड पे, तो मैंने यहाँ पे सिंबल यूज किया था कुछ इस तरीके से. ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट अ चार्ज. ये है यहाँ पे दिया हुआ एब्सोल्यूट चार्ज. इट इज नथिंग बट इक्वल टू -1.6022 into 10 raised to -19. Okay, charge is measured in the unit coulombs. Okay, अभी यहाँ पे the charge here over here, अभी जितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही आप यहाँ पे देख सकते हो है चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स. Because protons and electrons they are having equal charges, but electrons having minus charges, and the protons they will have the positive charges. I mean plus charges. Neutrons पे कोई चार्ज यहाँ पे होता नहीं. कोई बात नहीं. यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट है it's nothing but the relative charge. ये होता है इनका -1, इनका होता है +1 और इसको हम यहाँ पे पकड़ते हैं 0. Relative means generally as compared to charges, we have to take here -1 +1 simply for that three types of subatomic particles. Symbol for the charge जैसे यहाँ पे लिखा है -E+E and no symbol here. यहाँ पे ये दिया है इनका मास और ये मास दिया है मास इन kg. पर यहाँ पे दिया है 9.10938 into 10 raised to -31. And the next one is 1.6726 into 10 raised to -27, and here will be 1.67493 into 10 raised to -27. इन तीनों में अगर आप देखोगे तो सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, और इन दोनों का मास अगर आप देखोगे इट्स नियरली द सेम. अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स दे आर लाइटर बाय 1/1837 times than the protons. तो इनका मास यहाँ पे कम होगा kg में. These powers are negative powers, so you can see how lightweight all these kind of elements will be. I mean sorry, particles will be. मास अगर देखा जाए डाल्टन में तो इनका आएगा yes 0.00054. यहाँ पे दिया है 1.00726 और इनका है 1.00867. एंड वी आर टेकिंग हियर अप्रोक्सीमेट मास इन डाल्टन्स. तो ये इसका आएगा 0 डाल्टन, यहाँ पे आएगा 1, इसका आएगा यस 1 डाल्टन. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं. इमेजिन कीजिए अगर कोई स्टेडियम होता है ना, स्टेडियम क्रिकेट का, और अगर सोचिए वो स्टेडियम मतलब है कोई एटम. जस्ट इमेजिन. तो उसी स्टेडियम में क्रिकेट का जो बॉल होता है दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. सोचिए स्टेडियम, द साइज ऑफ द स्टेडियम इज नथिंग बट द साइज ऑफ एटम. जस्ट इमेजिन. तो उसी स्टेडियम में सेंटर में रखा हुआ न्यूक्लियस
मतलब सेंटर में रखा हुआ बॉल जस्ट लाइक द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और एक छोटी सी होती है ना लाल चीटी एंड AND एंड, तो वो जो यहाँ पे होगी इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट इन वेट और हाउ negligible they have the mass. That's why mass here taken is 0 dal. So this is regarding the properties of subatomic particles. ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, इतना आपको पॉसिबल है इतना कर सकते हो. वैसे इस पे तो कोई क्वेश्चन आते नहीं है हमको. ठीक है, अभी हम बात करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक. हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर explain the terms. Number 1 is isotopes and number 2 is isobars. चलो हम पहले देखते हैं क्या होते हैं आइसोटोप्स. आपको पता होना चाहिए the meaning of the word iso is nothing but the same. इससे पहले मैं चाहूंगा आपको बताना, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें करना होता है रिप्रेजेंट, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एक्स. तो यहां पे हम अगर लिखते हैं इसके लिए एक्स, सपोज एक्स इज एनी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, मेरे ख्याल से बिफोर टू स्टडी द टर्म आइसोटोप्स हियर वी हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल what is meant by atomic number and atomic mass number. आपको पता होगा, ऑलरेडी मुझे पता है, पर फिलहाल हम देखते हैं, थोड़ा उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे टॉपिक के पास. इसका नाम है आइसोटोप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एटॉमिक नंबर. इसके लिए सिंबल होता है Z, कैपिटल Z. कैन से पता है आपको क्या होता है एटॉमिक नंबर? क्या टेल मी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर. यू नो दैट एटॉमिक नंबर it is one of the important characteristic of all the elements. आपको मालूम होगा एक बात कि यहां पे जो Z है मतलब एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. यहां पे मैंने लिखा है माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन. Okay, so number of protons are equal to number of electrons are equal to atomic number. So atomic number के हिसाब से ही आपको पता होगा, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा द टॉपिक यस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर स्कूल ऑफ एलिमेंट्स, वॉट एवर द नेम ऑफ टॉपिक विल बी. तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा मेंडेलियस पीरियड टेबल एज वेल एज मोस्ले का जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल. ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में. तो उसमें आपने देखा होगा एलिमेंट्स वेर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर्स. तो when these elements were arranged in order of increasing their atomic numbers, then properties of certain elements were repeated again and again after certain intervals, and this is known as periodicity. Okay, ये आपने पढ़ा होगा पिछले साल. फिलहाल
मुझे आपको बताना यही है कि एटॉमिक नंबर इज सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंबल जेड। यहाँ पे भी मैं चाहे तो बड़ा सा जेड निकाल देता हूं, ठीक है, ओके। तो ये होता है एटॉमिक नंबर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन बी एटॉमिक मास नंबर। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ए। यस, कैन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर? बोलिए। इट इज द नंबर ऑफ, आई विल राइट हियर, it is the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. The sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is known as atomic mass number. So, आपको याद होगा protons and neutrons they are present in the nucleus, तो इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ऐसा मैंने कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में, because they are present in the nucleus, that's why they are known as न्यूक्लियॉन्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सो वी कैन से हियर इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहां पे ए मतलब होता है मास नंबर, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है हम प्रोटॉन्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, अगर हमने इसके लिए सिंबल यूज किया जेड, तो क्या आएगा? यहां पे आएगा ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू, सॉरी आई विल राइट हियर, एन इज इक्वल टू क्या आएगा? ए माइनस जेड। ये होता है यहां पे n जो है, n इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन नंबर। सो हियर न्यूट्रॉन नंबर, क्या सिंबल है इसके लिए? n। सो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द nucleus of an atom, and it can be determined by the formula n is equal to a minus z। so इस तरीके से यहां पे होता है न्यूट्रॉन नंबर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपके नोटबुक में, ओके। देन आई विल रिमूव दिस। Now, the next term is nothing but isotopes, as I said you earlier also. So, यहाँ पे ये आइसो जो होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टॉप्स, टॉप्स का मतलब होता है पोजीशंस। So, they are having the same positions, but where? In the modern periodic table. So they are known as isotopes. देखिए हाइड्रोजन की हम यहां पे दूसरा लेते हैं एग्जांपल 1 1 1 1 2 एंड 3। नीचे दिए गए हैं आपको एटॉमिक नंबर। लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, अगर x होता है कोई भी एलिमेंट, if x is any element, तो मास नंबर जो होता है a हम लिखते हैं ऊपर
और एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं नीचे। सो हियर एटॉमिक नंबर नीचे आएगा और मास नंबर आएगा ऊपर। तो A इज द सिंबल फॉर मास नंबर एंड Z इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर। तो ऐसे में हम यहां पे सिंबल यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा यहां पे जो भी कोई एटम होगा तो इसको हम जहां पे मतलब उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब किया हो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड। सो हियर इट इज नथिंग बट नोन एज न्यूक्लियाइड। ओके, तो देखिए ठीक उसी तरीके से मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है आइसोटोप्स का। नीचे दिए हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर यहां पे दिए हैं मास नंबर्स। सो अगर आप देखोगे तीनों के तीनों एटम्स जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम्स है और वो एटम है वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। सो वी कैन से वी कैन डिफाइन द आइसोटोप्स इन दिस वे। देखिए कैसे, डिफरेंट एटम्स ऑफ same elements having same atomic numbers but different mass numbers are called आइसोटोप्स। यस, डिफरेंट एटम्स आप देख सकते हो यहां पे अलग अलग एटम है लेकिन एक ही एलिमेंट है जो कि है हाइड्रोजन। डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इन तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है? एक ही है। मास नंबर इनका अलग अलग है, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो पहला वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलते हैं पता है ना ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ट्रिटियम। सो ट्रिटियम इस तरीके से देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, नाउ ये है इसका एग्जांपल। अगर हम यहां पे बात करेंगे आइसोटोप्स की तो इनके कुछ है फीचर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होंगे वो? नंबर 1, सो दे हैव क्या? नंबर 1, इनका एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इनका पोजीशन एक ही होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पेरियोडिक टेबल में। सो दे हैव सेम पोजीशंस in modern periodic table। then इनका अगर एटॉमिक नंबर भी सेम है तो मतलब दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। then they have same इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका सभी का सेम ही आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन वन मोर थिंग हियर, बोलिए यहां पे क्या आएगा? यस, दे हैव सेम वैलेंसीज। देन सो यहां पे इनका सेम ही रहेगा वैलेंसी, और यहां पे क्या आएगा? दे हैव सेम नंबर ऑफ, सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखा जाए तो इन सब में सेम ही रहेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो ये है इनके कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अभी और हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन का। तो कार्बन के होते हैं 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12,
कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इनका एटॉमिक नंबर सेम ही है, लेकिन मास नंबर इनके अलग अलग है, इसलिए हम उनके मास नंबर से पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 लाइक दिस। एटॉमिक नंबर क्या है इनका? सेम ही है। एटॉमिक मास नंबर क्या है इनका? पहले वाले का है 12, इसका है 13, इसका है 14। यह है न्यूट्रॉन नंबर। आपको पता है अगर हम यहाँ पे करते हैं a माइनस z तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8। ये दिया है इनका रिलेटिव अबेंडेंस। अबेंडेंस के बारे में हमारी बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में, आई मीन प्रीवियस चैप्टर में। तो इसका होता है 98.9%, इसका है 1.1% और इसका है लेस देन कितना है 0.0017%। मतलब इतने से भी कम होता है कार्बन 14 का रिलेटिव अबेंडेंस। इसलिए आप देख सकते हो कि ये दोनों स्टेबल है और ये है रेडियो एक्टिव। हम जानेंगे क्या होता है कार्बन डेटिंग, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त है, हम वो देखेंगे इन द टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है एक ही बात कि ये है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन और क्या होते हैं इनके प्रॉपर्टीज। देखिए ठीक उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे देखा H11 देन H21 एंड H31 की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने आएंगे? 1। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? वो भी 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहले में आएंगे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 यहाँ पे आएगा कितना? 1 एंड 3 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 2। तो ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात। दोनों तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ न्यूट्रॉन्स के नंबर में ही डिफरेंस आएगा। ओके, so in this way we can say some properties of the isotopes. Now the next one here, isobars. Iso का मीनिंग तो होता है सेम एंड बार्स क्या होता है? बैरीज। बैरीज मतलब क्या होता है? मास। इनका यहाँ पे सेम ही होगा मास, आई मीन एटॉमिक मास नंबर। हम पहले यहाँ पे एक देखते हैं एग्जांपल, फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है इसका 18, 19, 20। एटॉमिक मास नंबर सबका हालांकि 40, 40, 40 है। देखिए जैसे यहाँ पे तीनों के तीनों एटम थे लेकिन एक ही एलिमेंट के थे, यहाँ पे तीनों के तीनों एटम भी अलग है और एलिमेंट भी अलग है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि क्या इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। सो आई विल राइट हियर different atoms of different elements having same atomic mass numbers but different atomic numbers are called isobars. So इनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। तो देखिए प्रोटॉन्स की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो क्या आएगा? मैं एक काम करता हूं, इधर लिखता हूं, चलेगा? लुक एट दिस। यस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ
क्या है यहाँ प्रोटॉन्स, पहले में 18, इसमें 19, इसमें 20. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18, 19 एंड 20. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18, 22, 40 माइनस 19, 21 एंड हियर विल बी यस 20. तो ये है इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दे हैव डिफरेंट पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियड टेबल. आपको पता है आर्गन इज नोबल गैस, पोटेशियम इज अल्कली मेटल प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप, कैल्शियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन द सेकंड ग्रुप. देन they have different chemical properties. Argon is noble gas, potassium is quite reactive metal, calcium is reactive but less than potassium. So then they are having different electronic configuration as atomic numbers are different. Then they have different valency. इसका आएगा 0, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, and they have, you can see, सेम नंबर ऑफ, क्या है यहां पे, ये यहां पे देखोगे तो यहां पे सेम कुछ भी नहीं है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग अलग है इन सब में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे अलग अलग है. आई मीन आर्गन में 18 है तो इसमें है 19, इसमें 20. सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स इन केस ऑफ आइसोबार्स. ठीक है, काइंडली नोट डाउन दिस थिंग्स. और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट हमने लिखे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में. ठीक है, नोट डाउन दिस वन. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स. यस, देखिए यहां पे पहला दिया है कार्बन का एटम, इसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 14. सो इट्स अ कार्बन न्यूक्लियाइड एंड दिस इज नथिंग बट नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड. इट्स अ 14 and 7. तो यहां पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे. प्रोटॉन्स विल बी 6 and 7, electrons will be 6 and 7, and neutrons will be 8, and here will be 7. ओके, तो इस तरीके से हम यहां पे निकाल सकते हैं. आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ यस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच आर सेम हियर, यहां पे है दिया है. बट कार्बन और एन की अगर हम बात करेंगे यहां पे दोनों की, तो और दोनों के यहां पे तीनों के तीनों अलग रहेंगे. So इस तरीके से दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स. ओके, नाउ प्रीवियस लेक्चर में, आई मीन इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास. तो एक बार थोड़ा सा देखिए, इसको आपके बुक में दिया है इसलिए एवरेज एटॉमिक मास. अभी देखिए क्लोरीन का है, दो होते हैं आइसोटोप्स, एक होता है क्लोरीन 35 और दूसरा होता है क्लोरीन 37, एंड दे एग्जिस्ट इन द प्रोपोर्शन 3:1. ये है इनका एबंडेंस, मतलब 75% नियर अबाउट होता है क्लोरीन 35 का एबंडेंस, और 37 होता, आई मीन 25% होता है क्लोरीन 37 का एबंडेंस. देन टू कैलकुलेट दिस एवरेज एटॉमिक मास, let's multiply with this 3 into 35. हमको यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से और इधर 1 से करेंगे. तो सी नाउ 3 into 35 plus 1 into 37 डिवाइड बाय 3 plus 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 35.5. I think we have discussed it, how to calculate average atomic mass in the previous topic also, but still we have taken this example again for your understanding. Now
The next point here will be isotones. Now isotone is nothing but a different concept. For that I will give one example here. Boron, atomic number 5, mass number है उसका 11, and then the next one is here carbon, atomic number इसका 6 और mass number इसका है 12. अगर आप यहाँ पे देखोगे, बात करते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11 माइनस 5, यहां पे कितने आएंगे न्यूट्रॉन्स 6, 12 माइनस 6 कितने आएंगे 6. देखिए यहां पे इसमें है 5 प्रोटॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, इसमें है 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 है न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन्स तो यहां पे बिल्कुल सेम है, एंड इट्स नथिंग बट द 6. So such a kind of atoms having same number of neutrons, they are known as isotones. So different atoms of different elements having same number of न्यूट्रॉन्स, देखिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, and this is an example of isotones. So they are having, yes, same number of neutrons only, they are called as isotones. ठीक है, मेरे ख्याल से आज हमको यहाँ पे रुकना चाहिए, हम यहाँ पे रुकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर लेकिन इनके बारे में और भी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, इनके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 13 में. आई थिंक इट्स नथिंग बट अ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सो वी हैव टू सी हियर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियाइड्स इन डिटेल्स इन द चैप्टर न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री. ठीक है, आप जिस तरह से पढ़ रहे हो काफी अच्छा लग रहा है, आप अच्छे तरह से मतलब कर रहे हो रिस्पॉन्स. ओके, यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स डेली एंड सिंसियरली, प्लीज कीप इट अप. ओके, और आपका तुमचा हा जो उत्साह आहे, हा उत्साह कायम राहायला असला पाहिजे, आधी काय नाही. अरे हा होता काय जनरली की स्टार्टिंगला मुलांना फार उत्साह असतो, बट ऍट द एंड ऑफ द मतलब 2 साल के बाद बच्चे जैसे जैसे मतलब आता है एग्जाम नियर, वो हो जाते स्लगिश म्हणजे आळशी. तर तुम्ही असं करू नका, रोजचा रोज तुमचा अभ्यास चालू ठेवा. तुम्ही खूप चांगलं करता आहात अभ्यास. ओके, कीप इट अप. ओके, आणि इन केस दे डाउट यू कॅन आस्क मी. ओके, टिल देन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केअर अँड स्टे ॲट होम. बाय.